with Raju Prajapati. Hello, Aryan. Thank you for coming to the series of Udan, and we are going to share a very inspiring journey of yours being selected in FCI, being selected for the GATE 2023, and many congratulations for that. Thank you very much, sir. It's been a very long and struggling years for last 2 years for me, and I would like to thank AgriVision for you for their consistent support for during this period of time. Yeah, surely, thank you so much. We'll be always there for students like you, and I have seen personally, from working hard every day and asking all the queries and everything. Hmm. Anyway, coming to so basically, I'd like to tell you about Udan series. So in Udan series, we used to discuss the inspiring journey of someone who has, working in the sector of food technology allied, Hmm. let it be, agriculture or any of the competitive Hmm. examinations someone has qualified, and their journey can inspire to others who are preparing for their government examination or Hmm. this, competitive examination. Okay. So, Aryan, please tell about yourself, your journey, how it has been, from where you started, and in food technology, how did you enter into the sector of food technology? Since if you see last 5 7 years, Hmm. generally people were very kind of unsure about what food technology will bring, and even they used to compare with the food technology to hotel management, right? Hmm. So please tell me about your journey, how it has been. Okay. So my name is Aryan Mehta. I am hail from Jaipur, Rajasthan, the Pink City. एंड मेरी सर स्कूलिंग पूरी जयपुर में ही हुई है 10th 12th। एंड Correct. मेरे फादर जो हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी मैनेजर में एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रह चुके हैं एंड ही ओनली Great. रिटायर्ड लास्ट ईयर। सो तो मेरा जो फूड सेक्टर की तरफ जो एक्सपोजर था मेरा बहुत पहले से है। इनफैक्ट अराउंड 5th 6th क्लास से पापा मुझको ले जाते थे Oh, डेयरी में। nice. Yes, yes. He actually used to take me to visit to dairy whenever my mother is out of town and somewhere busy. So I'd actually seen how the milk is procured, how is the big industries regarding कि कैसे मिल्क अपना प्रोक्योर होता है, कैसे अदर अदर प्रोडक्ट्स में बनता है, बटर, घी, छाछ, लस्सी, पनीर। सो Nice. इन चीज़ों का एक्सपोज़र मेरे पास रहा है। एंड आल्सो वन अनदर थिंग कि मेरा जो है और मुझे मतलब इससे मुझे एक तो डिस्कवरी में एक शो आता था फूड फैक्ट्री का, तो वो मैं देखने लग गया हाँ एंड हाँ इट हाँ हाँ, आल्सो करेक्ट। इंटरेस्टेड मी कि कैसे-कैसे नए-नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। इतना सब कुछ है फूड इंडस्ट्री में। इट इज़ नॉट अ सम मेजर प्रोडक्ट लाइक स्टील और ऑयल की है ना, वो एक बार प्रोसेस होता है, एक तरह का होता है। बट फूड देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इन रेस्टोरेंट यू विल करेक्ट। फाउंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यू विल फाइंड मतलब हर चीज़ का करेक्ट। अलग-अलग है। और पनीर जैसे पनीर की सब्जी, चिकन की सब्जी अराउंड 100 वैराइटीज़ आर देयर एंड इन फैक्ट इवन इन टुडे करेक्ट। फूड प्रोसेसिंग दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी मिक्सेस ऑफ these प्रोडक्ट्स अलग-अलग। शाही पनीर मिक्सेस करेक्ट। अलग, करेक्ट। पनीर करेक्ट। मटर मटर पनीर मिक्सेस अलग, पालक करेक्ट। पनीर मिक्स यू विल फाइंड these प्रोडक्ट। सो मेरा एक्सपोज़र करेक्ट। रहा है। So I graduated in from 12th class in 2017. So my JEE main score was not good. And my father Okay. actually had so many students coming from different colleges like NIFTEM and also like in Udaipur CDFST, Anand Agriculture University. They all come to him for internship purposes and like 15 to 20 days. And my father got to know about the NIFTEM University, NIFTEM college. So he told me that you should apply for this institute as well. So because it was a government institute and I'd applied for that there. And I got admitted in 2017. So my father played a big role in choosing this particular stream as well. Correct. And I also have Correct. interest Because because many people don't have interest in this, then they don't know what they will study and all. But I have a pretty much a good idea about this particular branch. Also, before joining, I actually attended one management guru lecture of N. Raghuraman. If you know, he's from Dainik. He also used to write correct. Dainik Bhaskar articles. He told me Yes. that Yes. there Yes. are five major branches that they will never end and humans will consistently need. These include energy, water, house. There's one more I don't remember. And fifth last one, he told me food. These branches will never end Correct. because humans will need it. And they are needing it from the Correct. very time immemorial, from the very start of the universe. Correct. Every Correct. species and human Correct. beings need some source of energy, and food is the one thing that it will not never end. So from there, I started. I had taken admission in NIFTEM college,
in year 2017, and I graduated in 2021. And the college life had actually saved me and my personality very much, as I used to be very much introvert in the school days. But college life had actually opened me very much during that time. Although there are Correct, various correct, challenges during that time, like Corona period also came. But I was glad that correct. I graduated, and I also able to complete one research paper of my own, and I able to publish it in one reputed Nice, very journal. nice. Correct, Okay. correct. So, like it was really inspiring journey because Yeah, in that's in it. normally if you see in Yes. parents in a society of us, Hmm. generally people never be there, right? In Yes, of course yes. in one class super or one Hmm. generation above, our parents won't be there. Generally it is there क्योंकि Yes, अब yes. जाके फूड टेक्नोलॉजी में लोग थोड़ा उतरने लगे हैं, Yes, sir. एक्सप्लोर करने लगे हैं, राइट? ये जो आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ कि उस टाइम पर क्या स्कोप लगता था कॉलेज में जाने के वजह से, हाउ डिड यू फील कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? Okay. First of all, my college was started in 2012, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management. It was inaugurated by Sonia Gandhi and Sharad Pawar, then Honorable Minister of Food Processing Industries. So initial years, the college was just in building stage. By the time we joined in 2017, the main building and most of the infrastructure had already been built up. Our seniors used to राइट, told the earlier days of NIFTM how it is used to be, and how the boys and girls hostel are just very much फ्रंट आमने सामने थे उस टाइम, तो अब अलग हो करेक्ट। गए हैं बिल्कुल. So these were the things, right? And that time college was not actually popular. मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं था फूड टेक्नोलॉजी, नहीं पता क्योंकि था, उस नहीं समय पता था। एक ब्रांच थी देखो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीन तो मेन इंजन. बट करेक्ट। कंप्यूटर उस समय बूस्ट में था. इनफैक्ट जो लोग कहीं कर भी रहे थे तो कंप्यूटर की लाइन में भी जा रहे हैं. अभी भी आप यूजुअली विल सी आईटी सेक्टर इज वेरी मच इन बूमिंग आईटी zone, सेक्टर। and करेक्ट, civil and even those other engineering branches are trying to switch there because of करेक्ट, opportunity, and not only opportunity but better pay scale is I generally call the करेक्ट, major reason. And it was actually करेक्ट, more suitable because more people in engineering don't actually get to know that, because के इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, एक दो साल पता चलता है उनको ये चीज वो करनी नहीं थी, और ये चीज हमें हर बार कई बार देखने को मिलती करेक्ट। है. So you वेरी ट्रू, should, वेरी one ट्रू। thing I would definitely say, by after 12th you should make rigid decision that what you want to supposed to do. It is all right that if you switch the branch or innovate yourself, but I think it is very much important that you should take rigid decision and take importance in what you are supposed to do later, because करेक्ट। because many people face problems after that. मुझे यही और लगता है ना आर्यन की, हाँ, 12th में हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं 11वीं में 12वीं में, उनको क्लैरिटी ही नहीं रहती कि मुझे जाना क्या है, मुझे जाना करना क्या है, किधर है, क्योंकि एंड अभी भी, यस सर. मुझे मुझे ये लगता है ना कि 11 12th में दो ही चीजें देखते हैं, साइंस और मैथ्स। मैथ्स, सॉरी, यस सर. साइंस बेसिकली बायोलॉजी और मैथ्स, और हम्म. उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल। सो मेडिकल डायरेक्ट डॉक्टर क्लियर है। हम्म. इंजीनियरिंग में सीएस लेना है, कोई भी एक बच्चा अगर जेई नहीं निकाल पाता है तो वो ट्राई करता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज हम्म. में बस सीएससी कर लूं, मेरी लाइफ सेट है। तो यस सर. वो जो थिंकिंग है, लोगों को पता नहीं कि एग्रीकल्चर है और भी बहुत सारे ब्रांचेज जिसमें बहुत अच्छे हम्म. अच्छे स्कोप है। आप कॉमर्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, लोग इकोनॉमिक्स में कितना हम्म. अच्छा कर रहे हैं, बहुत देश को नीड भी है। तो वो उस लेवल पे थोड़ा और भी काम हमारे देश में, और स्कूलिंग लेवल पे एक हम्म. गाइडेंस की जरूरत रहती है कि कैरियर में क्या करना नहीं करना, वो पूरा यस सर. क्लियर। लाइक जैसे क्या होता है ना, एक और भी चीज है, बहुत सारे नॉन कोर की चीजें होती है, जैसे कोई किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को हम्म. आर्ट सीखना है, तो वी डोंट हाँ. गेट दैट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, राइट? तो हम्म. वो एक प्रॉब्लम है। नो, नो, नो। एक बात और है, लाइक आर्यन, जब आपने ये कर लिया 2021 हम्म. में, तो हाउ वाज द प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज, एंड इफ दे इट वाज देयर, क्यों चूज क्यों नहीं किया आपने? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रीजन ये था, कोरोना ईयर्स थे उस टाइम. मैं अगर लास्ट टाइम बताऊं, करेक्ट। 2019 में हमारा 90% बैच प्लेस हो गया था. वो अदर थिंग करेक्ट, है कि बाद में एक दो साल बाद वो लोग स्विच करते हैं, कुछ और करते हैं, बट 90% पीपल करेक्ट। गेट प्लेसमेंट इन 2019. 2020, after corona struck in March, many companies like ITC that had also come to our campus, they had left out from the placement because they were not ओह, confident. And two three organizations, like I won't name them, but they also वो भी मतलब प्लेसमेंट से बाहर हो गई. इनफैक्ट जब बच्चों का सिलेक्शन किया उन्होंने इंटर्नशिप और जॉब्स में,
तो उसके बाद उन्होंने 1 महीने बाद नोटिस दे दिया कि हम अभी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारा अभी नहीं रिसेशन कर का सकते। पीरियड चल रहा है। एंड दैट वाज एक्चुअली अ करेक्ट। वेरी हॉरिबल पीरियड फॉर बोथ अस एंड आवर सीनियर्स। इंटर्नशिप वाज अ पीरियड दैट यू हैव टू लर्न वेरियस थिंग्स एंड मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मतलब अच्छे, और उस समय आपके पास एक वो होती है चॉइस कि फूड सेक्टर में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, किधर क्या काम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस करेक्ट। थिंग्स इन फूड। और तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड था जो हमारा एक मतलब मैं बोलूंगा एक लॉस में गया था कि हम जिस कंपनी में चाह रहे थे स्टाइपेंड वाला हमें कोई कंपनी मिल जाती तो वो चीज़ नहीं हो पाई थी। सो बिकॉज माय फादर वाज इन डेयरी आई हैड टू डू माय इंटर्नशिप इन सरस डेयरी इटसेल्फ इन जयपुर डेयरी। And I had done in for the 5 to 6 months internship period for there, and I had done two small research projects like for supplying products for army. Army basically do have different regulations than FSSAI, so this was my project topic in during my internship. So I do think that although got good marks in internship, I was not pretty much satisfied with that. So during that time, I actually, and yes, during that internship period, I actually choose that I should opt for GATE exam as well, so that I could have Okay. a, future. I could opt for MTech if I don't get a good placement at that particular time. Okay. I thought about that. So so I don't have any idea about GATE exam, what is क्या होता है उसमें और हम कैसे देते हैं। और उस समय आई थिंक एग्रीविजन 2021 की बात है, तब मुझे पता भी नहीं था और शायद हाँ, आई थिंक नहीं अभी फाउंड भी था ही नहीं नहीं, था। मतलब हाँ, नहीं हुआ था तो उस टाइम। मैंने पर्सनली बस शुरुआत में ऐसे ही दे दिया था कि पेपर होता कैसे है, एंड आई एक्चुअली पास्ड बाय 1 मार्क इन गेट एग्जाम दैट ईयर। उफ। हम्म। बट लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट मिला नहीं है सच कुछ, क्योंकि बहुत कम मार्क्स थे वो। तो उस समय मतलब पर हाँ, उस समय इंटर्नशिप पीरियड में मैंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली थी। और आफ्टर इंटर्नशिप मैंने क्या किया कि मतलब फिर मैं कॉलेज आ गया, हम लोग 2-3 महीने के लिए हमें बुला लिया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोजेक्ट इस बार अच्छा करूंगा, मतलब आई विल टेक हम्म। अ गुड प्रोजेक्ट एंड आई विल डू इट बिकॉज इंटर्नशिप वाज नॉट, एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट इन 3 months पीरियड। Then the writing section, once again our college got closed because due to rising number of COVID cases. In May, June, कोविड July, केसेस। in 3 months had write our thesis and we had submitted. And by the December, it took 5 months that it got published in the journal. नाइस। तो गेट का मेरे पास ये था कि सर जब प्लेसमेंट हुआ था तो उस समय सर मोस्टली मार्केटिंग कंपनीज और ये सब आ रही थी। तो मेरा उसमें सर इंटरेस्ट था नहीं, एंड मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स अच्छे से कर पाऊँ मैं, सच बताऊँ तो। उस हम्म। समय मुझे ऐसा लगा था। तो उस समय सर एफएसएससीआई की वैकेंसीज आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसके लिए अच्छा। अप्लाई किया क्योंकि सर बिकॉज इट इज स्टिल अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। इफ अगर फूड सेफ्टी और फूड करेक्ट। टेक्नोलॉजीज के लिए बात करें तो एफएस और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यू आर नॉट गेटिंग राइट। तो उस करेक्ट। समय फिर सभी लोग, इनफैक्ट नॉट मी ओनली, इवन एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। तो मैंने करेक्ट। उसके करेक्ट। लिए किया। डिले हुए कुछ प्रोसेस उसमें काफी। फिर मतलब मुझे सितंबर में आया था और उसका पेपर मार्च में जाके हुआ था। एंड मार्च में हम्म। मैंने पेपर दिया, उसमें भी मुझे 3-4 महीने लग गए रिजल्ट आने में। So I was hoping that I will qualify the prelims, but it was not the case. I actually left the technical assistant exam. I actually got left by only 1 mark. This ओह। disheartened me a lot, very much. So, and हम्म। also CFSO exam for food safety officer, it was around 10 marks. And yes, competition was good. I actually expect that my paper got went great, but this was a period when I went over a little depression, and it was, and also I repeated the GATE exam again that year, but actually I also failed that exam by 1 mark. So this 2022 में। 1 year, ये 1 year मेरा पूरा वेस्ट हो गया। एंड कई लोग फिर बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, सजेशंस देते हैं, तो फिर वो सब और उस समय जुलाई मंथ आ गया था तो एडमिशन भी हर जगह क्लोज हो गए थे। तो मैंने एक करेक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट मतलब लोग कहते हैं कि आप ये जॉब ज्वाइन कर लो, बट मेरा उस समय हुआ नहीं है ऐसे। तो मेरे फादर ने मुझको थोड़ा वो किया मोटिवेट कि 1 year एक और बार ट्राई अटेम्प्ट करना गेट एग्जाम का। और दूसरे भी उन्होंने बोला एग्जाम्स का ट्राई करना लाइक नाबार्ड का, और उस समय फिर एफसीआई की भी वैकेंसी आई थी। मैंने इनफैक्ट ओके। कैट एग्जाम भी दिया था, जिससे मुझे आगे बता दूंगा उसके बारे में। तो मैंने सितंबर में एफसीआई का हुआ था, और जनवरी में उसका प्री हुआ, मार्च में उसका मेंस हुआ, और उसका रिजल्ट मेरा जून में आ गया था। और जून मैंने में आ गेट गया था। एग्जाम भी इस बार किया, इस बार मैंने कोचिंग ली, इस बार एग्रीविजन से मैंने वो किया, नोट्स लिए। मुझे एक चीज थी कि मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए थी जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। तो टेस्ट सीरीज मुझे एग्रीविजन ने प्रोवाइड कराया, मैंने उसको अटेम्प्ट किया अच्छे से, एंड आई वाज एबल गुड। टू गेट अ 600, मोर देन 600 स्कोर।
देखो Correct. That's a very सो good score. अब गेट में अब मेरे पास ऑप्शंस था मेरे पास कि चलो मैंने अपना गेट स्कोर अच्छा हो गया तो मेरा एक तरह से फ्यूचर की ठीक है अब मैं एमटेक में एडमिशन Clear. ले सकता हूँ कॉन्फिडेंस एंड हो जाता है, जैसा कॉन्फिडेंस हो कॉन्फिडेंस जाता है। हो Correct. गया निफ्टेम तो नहीं बट आईसीटी बॉम्बे इवन IIT गुवाहाटी एक्सेप्ट IIT खड़गपुर आई कैन सब जगह अप्लाई से फॉर एनी करेक्ट। इंस्टीट्यूट एंड इवन आई गॉट कॉल फ्रॉम नीटी बॉम्बे विच इज नाउ IIM मुंबई which is a big thing. Exactly. Yes. Yes, I got Correct. 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 then that was a big thing that I didn't even expect that I would get that score. So my interview went that they are not very much as expected, but I am glad that I got an opportunity to represent myself there, Yeah. and True. and I even got shortlisted for IIT Guwahati. But by the time I even booked tickets, my result for FCI had come just that day Oh, only. nice. So I have Yes, you to told me. sacrifice my half of the plane tickets. But actually, I consulted before joining the organization that what should I do because I got a 2 year gap. So I preferred doing some. So I decided to prioritize that I should have some experience. So by the time if in 2 3 years, if my mind changes and if I do something, I have some future plans, then I can do it very much better. Then I by the time I have a relevant experience for that too for even if I had to do MBA or some other courses like that. So I Correct. decided to join the organization, and it is a PSU organization, Food Corporation of India. So leaving it is not. I don't think it was a suitable thing for me that It time. would be a good choice always. Correct. आर्यन, ये एफसीआई के बारे में थोड़ा आप बता दो। एफसीआई एक Okay. ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, Okay. क्या क्या So अपॉर्चुनिटीज हैं? you have actually heard about Food Corporation of India. It is a very old राइट। organization around 1960s, and it works on a food on the for the food security of India. You know, food ओके। security. It is all about that every करेक्ट। each and every citizen of India should have a surplus amount of at least a minimum amount of grains and food products available for them. So, Food Corporation of India works on two major grains, wheat and rice. So they are so how they work is that they during the procurement season they procure the wheat and rice and farmers at MSP rate. Then they store the wheat and rice the products at their godowns, which is either a godowns held by Food Corporation of India or by state warehouse agencies or by the central warehouse agencies. These products are stored and after a period of time when there will be a demand that you should send this product, these products generally are sent to either at the PDS public distribution system, state government public distribution system, second Anganwadi, and third sometimes military. When करेक्ट। and it follows a first in first out order. First stack come first, that stack will be go out first. Okay, after a period of time there will be sometimes government policy and changes due to which the stack which are supposed to be prioritized get back. मतलब वो स्टॉक जो होता है कभी कभी वो काफी लंबे टाइम तक रह जाता है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल थर्ड पार्टीज को भी हम लोग इनवाइट करते हैं तो वो भी हमारा कभी कभी स्टॉक ले जाता है लाइक आई हैव सीन ITC एंड अडानी आल्सो परचेजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम FCI एज वेल हम्म। तो एक बार तो और मैं जनरली अभी टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन पे हूँ मेरा काम क्वालिटी से रिलेटेड है मतलब मेरा काम एक तो प्रोक्योरमेंट है कि प्रोक्योरमेंट आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होगा जब आप उसको स्टोर कर रहे हो उसका आपको मॉइस्चर और उसमें इन्फेस्टेशन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा एंड ध्यान जाते रखना समय होगा। आपको बस एक सैंपल्स प्रिपेयर तो मेरा टेक्निकल में ये ज़्यादा है मतलब इतना वो नहीं है बट क्या होता है प्रोडक्ट्स आपके पास टैक्स खूब सारे होते हैं वहाँ पे मतलब सो मेनी क्विंटल्स अराउंड 1 मिलियन टू क्विंटल्स आपको वीट है उन सबका आपको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है अच्छे क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी तो ये हमारे हम्म। टेक्निकल का स्टाफ काम होता है और जनरली वीट एंड राइस प्रोडक्ट्स हम दो में ही करते हैं कभी कभी कोर्स ग्रेन्स लाइक मिलेट्स भी आ जाते हैं बट जनरली मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अभी हम वीट और राइस का ही काम कर रहे हैं व्हीट और राइस करो। और मतलब करेक्ट। ये है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर आपने देखा होगा वीट और राइस की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती इंडिया में कभी नहीं वो नहीं आपको नहीं नहीं। रेडिली अवेलेबल मिल जाता है तो ये FCI की वजह से है कि हमारे मतलब सबको जो वीट और राइस है मतलब लो प्राइसेस में राशन में मतलब कि मार्केट में आपको लो प्राइसेस में मिलता है इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ फूड हम्म। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेक्ट करेक्ट। तो आई होप पीपल वुड बी हैविंग आइडिया कि एफसीआई क्या करता हाँ है। FCI क्या बेसिकली करता है बाइंग ग्रेन फॉर फार्मर्स टू कलेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग एट राइट टाइम, दैट्स यस व्हाट इन सिंपल वर्ड्स and द yes वर्क it ऑफ is also एफसीआई। the राइट। largest supply chain of in India supply chain organization of India because one करेक्ट state to करेक्ट। other state like we got grains from Punjab and Haryana
and we have to store there for a period of couple of months, and then we have to issue them to the either the third parties or either to the state government for the further Public. distribution. And you can see that there are So like products like tomatoes that like they are fluctuating and they are not the because they shelf don't have life a is not good the they don't have a good storage supply chain facility. network and storage sector. So And these are the challenges storage here. also it can't be done. Storage also it Yes, can't sir. be done because its shelf life is very less. Correct. Just self life. And for wheat and rice, Yeah. the self life is very much good. It can also run for Yeah. 1 to 2 years, more than 2 years. So, generally, Aryan, in many of the cases, many of the Hmm. people cases, इतना पेशेंस नहीं होता है कि आप एक जगह रुक के और इतनी तैयारी कर लो या Hmm. एक Hmm. जगह Hmm. काइंड ऑफ इधर हम बहुत सारे ताना जो लोग देते हैं आसपास के Hmm. लोग या कलीग्स वगैरह अपने Hmm. साथ Hmm. के लोग देखते हैं कि पीपल हैज रीच समवेयर एंड वी आर नॉट डूइंग समथिंग इन Hmm. दैट केसेस मेक मेंटेनिंग दैट मोटिवेशन एंड ट्राइंग टू डू इट्स रियली हैट्स ऑफ Yes, sir. मैं एक Sir, बात last. पूछना चाहता हूँ Yeah. Okay. प्लीज Yes, sir. मैं Yes, एक sir. बात पूछना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू मेंटेन दैट वो क्योंकि प्रॉब्लम्स will be going on people will say that your family I believe your family would have supported a lot because Yes, वही sir. प्रॉब्लम होती है Hmm. मैक्सिमम टाइम्स क्योंकि वो दुनिया का तो देख लेंगे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर Hmm. दुनिया Hmm. अपनी देख लेते कोई इशू नहीं होता एंड कैसे आपने प्रिपरेशन किया एफसीआई वगैरह की भी कि कब से कर दिया था या अचानक से आई एंड द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन इन लास्ट 2 इयर्स जो 2021 में आपने गेट का किया है Hmm. 2022 में किया so that efforts also kind of multiplied and you Hmm. gave you Hmm. the best results in 2023. Hmm. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर ड्रॉप में तो मुझे इतना नहीं हुआ था बट सेकेंड ईयर ड्रॉप में मुझको बहुत ज्यादा फील हुआ था कि मतलब मुझे कुछ करना चाहिए था इनफैक्ट आई Hmm. आल्सो स्पेंड सम स्लीपलेस नाइट्स एज वेल कि मतलब मुझे लगता है कि अरे मेरे फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइक दिस तो एक Correct. फीलिंग आती है गट फीलिंग भी और उनके 2 साल हो जाएंगे पूरे मेरा तो अभी तक कुछ जॉब नहीं हुआ मैं क्या करूं ट्राई तो मैंने ये सोच Correct. रखा था ये साल लास्ट है मेरा मतलब मैंने 2 इयर्स दिए बट ये साल लास्ट है मेरा अगर किसी कंपटीशन में हो जाता है गुड है अदरवाइज मैं गेट एग्जाम में क्लियर करूंगा मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके फिर पढ़ाई करूंगा बट मैं इससे 2 इयर्स से ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक टाइम हो चुका Correct. है फिर उस समय फिर आप बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बाद भी Correct. तो ये चीज थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और जब भी ऐसा मुझे लगता था ना कुछ मुझे अजीब लगता था मैं अपने फ्रेंड से जरूर हर बार कॉल करता था कि कहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो तो मैं अपने आप को भी थोड़ा ये रखता था कि मैं अकेला अपने आप को महसूस नहीं करूँ क्योंकि अभी एक Right. साल से मैं घर से निकलता नहीं था बट मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज थे उनसे मैं टच में रहता था बहुत मैं अपने इनफैक्ट प्रोफेसर से भी मैं टच में रहता था तो वो भी मुझको सजेस्ट करते That's थे nice. कि आपको क्या करना चाहिए फिर उन्होंने बोलते हैं कि आप इतना अगर आप कर ही रहे हो तो फिर अभी आप जॉब से बेटर है कि आप इन पे ट्राई करो जॉब अगर अभी गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाती है बेस्ट है अगर नहीं लगती आप है ना फिर इनका ट्राई करो एग्जाम्स का ट्राई करो गेट का CFTRI का उनमें आप ट्राई करो उनमें हो जाएगा फिर अगर आपने इतना साल कर ही Correct. लिया है तो Correct. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं ऐसे किसी ने मतलब लोग कंसर्न्स भी एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं मैं कभी ये नहीं सोचता था कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये तुम कोई कुछ नहीं कर रहा उनकी भी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि वो एक तरह से मैं ये लेके लगता था कि वो मेरे लिए कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है तो मुझको वो चीज Correct. भी हाँ तो मैं मतलब इस चीज को नेगेटिव That's नहीं a good लेता था कि thing. हमको ये कह रहा है That's a तो good मुझे thing. लगता है कि अरे यार That's a मेरे good लिए thing. मतलब सोचते हैं मेरे बारे में भी तो मुझको भी ये चीज अच्छी लगती है फिर Correct. तो बस Correct. ये था कि So मतलब करेक्ट सो आर्यन व्हाट डू यू थिंक कि जैसे एग्रीवेशन फॉर यू जैसे प्लेटफॉर्म्स है लाइक अभी जैसे हम्म आपने बोला हम्म कि जब जिस टाइम पर आप देख रहे थे देयर वाज नथिंग टू हम्म गाइड कि क्या फूड टेक्नोलॉजी में हम्म क्या क्या चीजें हैं सो व्हाट डू यू हम्म थिंक दैट हाउ मच गुड वी आर डूइंग एज अ प्लेटफॉर्म लाइक as एग्रीवेशन a फॉर यू इस platform एंड क्या saying क्या कर सकते हैं so as a platform you are actually doing very great thing because for agriculture and because agriculture is a big field and many people actually graduate from agriculture sector you will find that there are not अगर आप देखोगे यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको मैटर और कुछ कहीं नहीं मिलेगा कोई बड़ी नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट भी ऐसे इसमें कोई काम अभी कर नहीं रही है तो एक नोवल थिंग है कि कोई कोई एडटेक कंपनी इस पे भी वो फोकस कर रही है इनफैक्ट फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में और पर्टिकुलरली आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सब जबरदस्त इसकी डिमांड है
आप कहीं भी जाओ, करेक्ट। बैंकिंग सेक्टर में भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की डिमांड है, तो एग्रीकल्चर की डिमांड है। उनके हिसाब से वो हर साल पॉलिसी लाते हैं, अपने हिसाब से वो रिसर्च करते हैं, फिर उस हिसाब से है ना, कई इंडस्ट्रीज में, कई जगह, कई फार्मर्स की एमएसपीपी इन सब में गाइडलाइंस बनती है। तो ये सेक्टर स्पेशली बहुत ज्यादा बड़ा है। तो एग्रीविजन इसके लिए वर्क कर रहा है बहुत, मैं मतलब इसको बहुत वो बोलूंगा, बहुत अच्छी चीज है कि मतलब उनके लिए कर रहा है, स्टूडेंट्स को एक वो मिल रहा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। और इनफैक्ट फूड टेक्नोलॉजी नहीं है। बैकग्राउंड से, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे, आप कहीं भी देखो नहीं कुछ नहीं मिले, दिखते। गेट एग्जाम में आप देखोगे वो लोग फूड टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बट उन्हें फूड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। और उन्हें गाइड भी चाहिए जो फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच से हो और उनको सपोर्ट भी करे। सो फॉर एज बताए बिकॉज वही। अभी 1-2 इयर्स हुआ है, तो अभी बहुत अच्छा है, मतलब एग्रीविजन कर रहा है। इम्प्रूवमेंट के लिए रूम अभी काफी मतलब है, उसमें भी काफी कुछ चीजें हमें इम्प्रूव एग्जैक्टली करनी exactly. होंगी। अभी हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं हाँ, वो क्या होता है ना कि लाइक बिगिनिंग में बहुत सारी हाँ, चीज नहीं रहती, बिगिनिंग में आपके पास बहुत टीम चीजें नहीं है, होती हैं, पैसा नहीं है। आपको ये नहीं है, टीम नहीं है, पैसा नहीं है। और फिर हम ये सब, अगर अगर हम फोकस करें तो अभी हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को सबसे बड़ी नीड होती है वो है कि टेस्ट सीरीज होना चाहिए अवेलेबल, टेस्ट सीरीज ओके। और नोट्स। हम लोग अभी कोचिंग भले इतने लोग नहीं हो कि हम उनको प्रोवाइड करा पाए, और अगर आपकी भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ये होंगी अभी डिफिकल्टीज, तो हम शुरुआत में ये कर सकते हैं कि हम लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज तो हम बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो करेक्ट अगर नहीं करेक्ट हो पाता, लेक्चर्स होना इज नॉट, वो कोई नहीं है, बट बच्चों के पास नोट्स हो उनके पास भी नॉलेज होती है, वो भी अपने आप से कर सकते हैं। करेक्ट तो इनिशियल स्टेज में करेक्ट जो भी आप कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए आप पहले आप टेस्ट सीरीज और इससे स्टार्ट कर लीजिए, नोट्स से। देन अगर आपके पास पूरा करेक्ट। स्टाफ हो, आपके पास पूरा अच्छा सब हो, तो हम लोग फिर फैकल्टी, हम लेक्चर्स सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट 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 करेक्ट, दिस क्योंकि इज अ अभी गुड भी कई आइडिया, है, आई टोटली। एग्रीविजन भी नया है, कई लोगों को भरोसा भी नहीं है कि हम करें, लेक्चर्स अच्छे होंगे नहीं करे होंगे। नहीं करे नहीं करे, तो करेक्ट इसलिए हम लोग करेक्ट सबसे पहले टेस्ट सीरीज अच्छी करें, और वो अच्छी करें, हम अपने नोट्स अच्छी करें, जो बच्चों को लगेगा अच्छा है ये, बहुत अच्छा, वो बाद में रिकमेंड करेक्ट करेंगे, फिर हम लोग लेक्चर्स पे फिर हम आए। और लेक्चर्स भी हम लोग इनिशियल रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है स्मॉल स्मॉल, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फुल फ्लेज करेक्ट। में जैसा भी हम गेट का जैसे अभी अच्छा चल रहा है, बट अभी दूसरे एग्जाम जैसे QCI का है, उसमें अभी इतना नहीं हो पा रहा। अभी अभी नया ही आया है, नहीं, राइट, अभी हमें हाँ, पता भी नहीं था, क्या तो उसमें पता भी भी ट्राई नहीं कर है। रहे हैं, तो दिस इज। तो इसलिए हम करेक्ट इसके लिए करेक्ट सिर्फ करेक्ट टेस्ट सीरीज, और उसके लिए हम लोग है ना, नोट्स के लिए हम लोग वो कर सकते हैं कि बच्चों को अगर वो चीज करेक्ट मिल जाए, और थोड़ा सा हम लोग डेमो के लिए एक एक लेक्चर और एक टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर सकें। करेक्ट, विल हम्म। श्योरली वर्क अपॉन दैट। हाँ, लास्ट टू क्वेश्चंस है मेरे, कि आर्यन, व्हाट शुड बी योर सजेशंस टू जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? And the last one is, what do you see in next 5 years? What are the opportunities in ओके, food फर्स्ट sector? ऑफ ऑल मैं जूनियर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आपने फूड टेक्नोलॉजी ली है, उस सेक्टर को आप लोग पहले स्टडी करो शुरू के 2 साल। आप मतलब देखो, हम्म। ये नहीं है कि आप बिल्कुल आप आओ और रिग्रेट करने लग जाओ, अरे मैं कहाँ आ गया, ये हो गया। आप पहले अच्छे से एक बार समझो उस ब्रांच में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो आप करो। उसमें आप पहले, इसमें शुरू के 2 साल यही बोलूंगा कि मतलब मतलब मैं ये बोलूंगा, आप एक बार सेक्टर को पूरी तरह से एक बार समझो, सीनियर से बात करो, क्या काम होता है और ये होता है। सेकेंड ईयर के एंड में आप डिसाइड करो कि मुझे गेट पे जाना है, कैट पे जाना है, फॉरेन स्टडी करना है, या करेक्ट सीधे जॉब करना है। आपको क्या सही लग रहा करेक्ट है? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इस ब्रांच में बिल्कुल नहीं बैठा, तो फिफ्थ ऑप्शन है कि आप ब्रांच में, उसके लिए भी वो नहीं कर रहा, बट एक बार आप इस सेक्टर में आए हो तो, लेकिन आप उस सेक्टर को भी स्टडी करो। ठीक है, तो मैं बस वही जानना चाह रहा था कि आपको आपको लगता है कि मैं मैनेजमेंट में अच्छा कर पाऊंगा, पैसों के पीछे जल्दी मत भागो। इवन आईटी सेक्टर करेक्ट। में भी थर्ड थर्ड 3 टियर के कॉलेज से भी अगर आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर में करते हो, तो वो भी 3-4 साल स्ट्रगल कुछ करता नहीं है। मिलता है। मैं नहीं नहीं, बुराई नहीं करता कर है। रहा, मैं 2-3 लाख की सैलरी मिलती है। करता तीन है। चार बाद वो एक्सपीरियंस नहीं, आई अच्छा नो। स्किल सेट लेता है, फिर उसको जाके 10 LPA का पैकेज मिलता है। और ये मेरे कजिन के करेक्ट, साथ एक अग्रीड। एग्जाम्पल है। तो फूड सेक्टर में भी ये चीज है, इसमें भी आपको शुरू इनिशियल में आपको कम मिलेगा बहुत। आप स्टेबिलिटी 30 to 35 पे मिलेगी, उसके दौरान आप 30 साल की उम्र तक है, आपके पास रूम है इनोवेशन के लिए, स्किल सेट सीखने के लिए। 30 साल तक इसलिए कह रहा करेक्ट हूँ क्योंकि उसके बाद फैमिली लाइफ आ जाती है, तो वहाँ करेक्ट थोड़ी सी करेक्ट। प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज वेरी आप ट्रू अगर वेरी टाइम ट्रू। मिलता है तो कर सकते हो, बट हाँ, सेकंड ईयर तक आप सेक्टर को समझो। सेकंड ईयर के एंड में डिसाइड करो आपको गेट पढ़ना है, गेट करना है, कैट करना है, फॉरेन जाना है, पी ना रिसर्च करनी है। और अगर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लग रहा आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ और करना चाहते हो, तो आप उस समय आप डिसाइड करो।
फिर आप करो वेरी ट्रू। थर्ड ईयर में, आप आपका फिर प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए कि आप कैट गेट कोई भी कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो उनके लिए आप करो। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ईयर में जनरली आपको पेपर देना है, थर्ड ईयर में आप मतलब पूरा वो दो, सेकंड ईयर में भी आप अगर हो जाता, अगर जल्दी करना चाहते हो कर सकते हो, पर थर्ड ईयर फिर आपका पूरा उसमें निकल जाना, मतलब आपकी प्रिपरेशन में। फोर्थ ईयर एग्जाम टाइम है, ट्राई करो एक बार में ही अच्छा हो जाए, मेरे जैसा केस नहीं बने, क्योंकि मैंने फोर्थ ईयर में जाके प्रिपरेशन करी थी, एंड फोर्थ ईयर में जाके मेरा गेट भी एक नंबर से क्लियर हुआ था। तो मेरा 2 साल इस तरह डिले हो गया, वरना क्या पता उस समय क्या ऑप्शन होता, मैं कहाँ जाता। तो इसलिए मैं कहीं ये और कह चल रहा हूँ। जाते, करेक्ट। वही तो, गैप ईयर लेना इज नॉट समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। इसलिए इसलिए मैं भी बस ये चाहता हूँ आपका भी गैप ईयर बहुत वेस्ट नहीं हो। 1 ईयर मैक्सिमम यू कैन टेक इट, क्योंकि कई लोग तो ड्रॉप लेके भी है ना कॉलेज बीटेक करने आते हैं, तो उनके लिए फिर एज करेक्ट। फैक्टर बड़ी चीज हो जाती है। एंड एफसीआई में जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो इनिशियल में 21 to 24 एज ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उनके लिए बेस्ट है। बाकी 25 के बाद थोड़ा सा फिर, क्योंकि उसमें भी एज लिमिट 26-27 की है। मैं अगर 3 साल बाद करेक्ट। देता है पेपर को, तो मैं तो एलिजिबल भी नहीं होता उस टाइम। तो फिर एलिजिबल भी अभी नहीं था, होता, हाँ, करेक्ट। तो अभी है रूम, अभी मुझको थोड़ा टाइम भी मिल रहा है आगे की प्रिपरेशन के लिए भी, कहीं और जाना चाहता हूँ तो। So it is a good organization for right now, but I am also in probation stage, so I had still very many things to learn right now. तो बस मैं करेक्ट, यही वेरी सजेस्ट ट्रू, वेरी करूंगा ट्रू। कि मतलब ऐसा, मतलब आप अपना डिसीजन लो अच्छे से। ऐसा नहीं हो 30-35 साल के बाद आप बोलो अरे ये तो जॉब बकवास है, इसमें आना मत, रिग्रेट कर रहे हो आप, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बस। करेक्ट, पर्सनली करेक्ट। मेरा ये मानना है, दैट्स क्योंकि देखो हर जॉब में प्रॉब्लम है, और आप 15-20 साल कहीं भी जॉब करोगे, वहां एक बार आप बोर तो हो गए ही होंगे। बोर हो गए, फ्रस्ट्रेशन ऑफ भी कोर्स, ऑफ होगा, कोर्स। वहाँ आपके मैनेजमेंट से बनेगी नहीं, कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे, मैं अभी भी जैसे एफसीआई में देखता हूँ। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि इन चीजों का नहीं है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है, और चैलेंजेस हमेशा आएंगे, चैलेंजेस का कोई वो आएंगे, नहीं है, आएंगे, आप करेक्ट। आराम कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक चैलेंज खत्म होगा, दूसरा करेक्ट, चैलेंज आएगा। करेक्ट। मुझे एक लास्ट चीज बता दो। आप, सिंस यू हैव बीन द बैकग्राउंड ऑफ आल्सो फूड सेक्टर, डैड आपके फूड सेक्टर में थे, तो आप अगले 5 से 10 सालों में व्हाट डू यू सी द स्कोप इन फूड टेक्नोलॉजी? लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी एंड ऑल सो इस देखो, सेक्टर में? इंडिया की अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और फूड सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है अभी। तो अब आप देखो, जैसे अभी सबसे बड़ा केस आया है टमाटर का, टमाटो प्राइस हाइक हो गई, मिडल मैन के लिए टू करेक्ट, हंड्रेड 300 रुपीज पर केजी हो गया वो। तो एक करेक्ट। नए ऐसे रूम में भी एक वो मिलता है इनोवेशन, कि हमें उस फील्ड में क्या करना चाहिए कि ये बाद में हमको ये चीज नहीं हो। एंड टमाटोज नहीं है, आपने पिछले साल भी देखा है कि प्याज भी बहुत महंगे हो जाते हैं। प्याज महंगा हुआ था। हाँ, बहुत टाइम, बहुत बार हुआ है प्याज तो महंगा। तो ये चीजें करेक्ट, जो करेक्ट, होती करेक्ट। हैं। और अभी भी हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि 9 मिलियन जॉब्स होंगी 2024 तक, फूड सेक्टर देगा। तो अब, और इसके अलावा भी अनुराग ठाकुर ने भी ये बोला है कि वो लोग फूड स्टोरेज के भी खूब सारे गोडाउन्स और वो सब खोलेंगे। तो खूब सारी बहुत सारी वो निकलेगी इसमें फूड में वैकेंसीज। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें एआई से भी खतरा नहीं है फूड सेक्टर को, बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि नहीं है, इंसान को नहीं है, खाना नहीं। तो चाहिए ही चाहिए। इनोवेशन आप एआई करोगे, नहीं बना प्रोडक्ट सकता। लाओगे। हाँ, एआई भी करेगा, तो अगले 50-60 साल तक भी मुझे लगता नहीं इसमें कोई क्या कर पाएगा। हम क्वालिटी का काम है, हमें ही करना पड़ेगा वो भी। आर एंड डी का काम है, वो भी ह्यूमंस को ही करना पड़ेगा। करेक्ट, पैकेजिंग में ऑटोमेशन करेक्ट, ऑलरेडी आ ही चुका है फूड सेक्टर में, बट उसमें भी ऐसा करेक्ट, कुछ नहीं कि जॉब में कुछ खतरा है, कुछ हो रहा हो। इनफैक्ट वो एक नया रूम ला रहा है स्काडा के लिए भी, कि इनोवेशन करेक्ट। से आप अपना ऑटोमेशन भी कई लोग सीख रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में। तो मुझे और फूड कभी डिमांड खत्म नहीं होगी, नए नए इनोवेशन आएंगे, नया नया खाने की चीज आएगी मार्केट में। इंसान वो ट्राई करना चाहेगा ही चाहेगा, उसको अच्छी लगे न्यू तो। प्रोडक्ट्स बनाते रहे, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आते मिक्सेस रहते हैं, बनाते रहे, न्यू प्रोडक्ट। आते रहेंगे। तो करेक्ट। देखो वैकेंसी इसमें बस ये है, इनिशियल आपको इतना अच्छा पे नहीं मिलेगा, जिस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बट ये है 2-3-4 ईयर्स आप एक्सपीरियंस लोगे, आप स्किल्स लोगे, आप अगर मैनेजमेंट में लाइन में जाते हो, तो फिर आपको है ना है ना सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। इंडिया की अगर करेक्ट, मैं बात करेक्ट, बताऊं ठीक। तो, अदरवाइज फॉरेन भी आप जा सकते हो, अगर आपको रिसर्च फील्ड में वहां पे अगर सेटल होना है, तो वहां पे भी बहुत अच्छा जाना स्कोप है। है। इंडिया, हाँ। करेक्ट, ठीक है। सो विद दिस, आर्यन, थैंक यू सो मच हाँ, फॉर थैंक यू सर। telling about your very inspiring हम्म। journey, and I हम्म। really see someone,
बहुत सारे लोगों का सेम रहता है यार, मैं थर्ड ईयर में क्वालिफाई, लाइक देयर वाज अनदर स्टूडेंट आकांक्षा पंचल, वो थर्ड ईयर हम्म में शी कुडंट, आई मीन विद नॉट गुड मार्क्स शी कुडंट मेक इट, सो फिर से उसने ट्राई किया एंड शी वाज वन ऑफ द यस हाईएस्ट सर रैंकर, राइट? सो बहुत सारे लोग की ऐसी जर्नी होती है, एंड इट हम्म इज गोइंग टू टीच अ लॉट ऑफ लेसन्स that your हाँ journey has been, right? So and also they'll be getting insights about ki food sector यस सर में है options, है हम्म opportunities, and please हम्म join food technology also. You can give to message about agrivision for you in the last कि लोग join हम्म करे, like us, subscribe us and comment. हाँ चलिए thank you very much, very insightful session with you, and I'm looking forward with you for another such session with Sure. you. Surely, surely, surely. Thank you so much. Thank you sir.